Hi everyone, I am Gaurav Marwa, Director of Unique IS Study Circle. Unique IS is an ISO 9001-2015 certified institute. And we provide quality online and offline coaching for last 30 years. And we are given already a third, seventh and number of ranks in IS exam as well as 3 times first rank in MPPSC. And we also provide the quality blogs, and we have a dedicated free YouTube channel which covers the most of the aspects of the current affairs. So today I am going to bring a very useful video for you that is on recent India-China standoff. This video covers the actual reasons of the standoff and how India can counter China. I hope you like this video. If you like this video, kindly share and subscribe. Thank you very much. So India-China standoff 2020. So recently in the northern India, in the Union Territory of Ladakh, a face-off and later on a standoff is seen between the Army of India and the People's Liberation Army. मई और जून महीने में भारत और चीन की सेना, जिसको पीएलए कहते हैं, के बीच में मुठभेड़ देखी गई. बट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, नॉर्मली गन फायर एंड एक्सप्लोजिव्स डू नॉट टेक प्लेस. तो भारत और चीन के बीच समझौता है जिसमें दोनों की सैनिक आपस में गोली बारूद के साथ नहीं भिड़ते, वो आपस में गुत्थम गुत्थ होते हैं. So, but this time what happens in the standoff, 20 Indian soldiers of 16th Bihar Regiment died. लेकिन इस बार स्टैंड ऑफ में सिचुएशन ये रही कि जो पीएलए के सोल्जर्स हैं वो लाठियों के ऊपर कटीली तारों को बांध के लाए. लाठियों के अंदर कुछ उनके तीरनुमा भाले जैसे भी कुछ औजार लेके आए, जिससे 20 भारतीय सैनिकों को उन्होंने हताहत किया. और ये सैनिक थे 16 बिहार रेजिमेंट के. बट एट द सेम टाइम द ब्रेव इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो इन्फेक्टेड लॉसेस टू द पीएलए. और बहादुर भारतीय जो जवान हैं उन्होंने भी जो चीन के पीएलए के सोल्जर्स हैं उनको काफ़ी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया. एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 40 to 45 चाइनीज सोल्जर डाइड. तो 40 से 45 के बीच चीनी सैनिक जो है मारे गए हैं. बट चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड विद द डेथ. लेकिन चीनी सरकार ने कितने सैनिक मरे इस पे अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया और आप देख रहे हैं ये जो एरिया है दिस इज श्रीनगर और this area is known as the Pak occupied Kashmir. This is Pak occupied Kashmir. ये इसको हम इसीलिए POK कहते हैं. This place is Gilgit and close to it is the Baltistan. ये this will again come in our current discussions. Gilgit and this is आप देख रहे हैं Pak occupied Kashmir. And this line is known as LOC, that is line of control. मैं इसलिए इस पोर्शन में गया हूँ so that you can understand the difference between line of control, that is LOC, and LAC, line of actual command. So this is line of actual command and it is between India and China. So on the northern border there are two lines. Again I repeat, that is LAC, that is line of actual control. And this is LOC, that is the line between India and Pakistan. So currently we have to discuss more about the LAC, that is line of actual control. And this is the place Daulatabad Oldi, Daulta Beg Oldi, जिसको we will say DBO, Daulta Beg Oldi DBO. And this is the strategic Karakoram Pass. ये Karakoram Pass है. And this is the area Aksai China. This Aksai China is basically it's an Indian territory. It was an Indian territory till 1962 and the Chinese PLA occupied this area in the Battle of 1962.
तो 1962 के युद्ध में चीन ने लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कब्जा करा हुआ है और तब से इनका आज तक कब्जा है. सो दिस इज नोन एज अक्साई चाइना. एंड ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे. दिस इज एन ओरल लाइन, यानी ये नक्शे पे एक मौखिक रूप से स्वीकृति के बाद प्लॉट की गई है. पहली बात तो पूरा अक्साई चाइना इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है. चाइना ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ है और चाइना अब और आगे बढ़ने की तैयारी में है. एंड दिस प्लेस इज दौलता बेग ओल्डी, वेयर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड एन एयर फोर्स बेस, जहाँ पे एयर फोर्स का एक बड़ा हवाई अड्डा है, जहाँ पे बड़े बड़े हवाई जहाज उतरने लगे हैं. तो उसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज for the first time in last 45 years, the Indian side has suffered casualty during the face off and the standoff with the China. तो 45 वर्ष में पहली बार है कि भारतीय तरफ से 20 लोग मारे गए, एक बड़ा फिगर है. और चाइना के तरफ से हो सकता है 40 से 45 लोग भी मारे गए हों, तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीयों ने बहुत डट के मुकाबला किया है. एंड लेट मी मेक यू वेरी क्लियर दिस थिंग, द PLA आर्मी में बी डबल इन साइज देन अस. अगर भारतीय सेना 11 लाख या 12 लाख या 13 लाख फौज की है और PLA भले ही उससे डबल हो, PLA में भी बिटवीन 20 to 23 lakhs. But if we talk about LAC, so in LAC the position of Indian army is much better. जो भारतीय सैनिक हैं उनका युद्ध कौशल इस लाइन के आसपास ज़्यादा अच्छा है. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. तो दिस इज this standoff is happened around the गलवान वैली. तो अब हम आ जाते हैं, अभी हमने देखा कि दिस इज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दिस प्लेस इज दौलता बेग ओल्डी, दैट इज DBO. अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल में अब हम इस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर ये जो अभी मौजूदा संघर्ष हुए हैं, लगभग इस जगह पे. तो इस प्लेस का नाम है गलवान वैली. तो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो हम देख रहे हैं दिस इज लद्दाख, द कंप्लीट एरिया इज नोन एज लद्दाख. एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लेह. ये एक रिवर है जिसको श्योक रिवर कहते हैं, श्योक. और ये जो गलवान रिवर है, गलवान रिवर बनाती है गलवान वैली. दिस प्लेस इज सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड. और जो सियाचिन ग्लेशियर है लगभग -30 -35 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जहाँ भारतीय सैनिक बहादुरी से डटे हुए हैं. और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, आप समझते ही हो कि ये काराकोरम जो रेंजेस हैं, जो कि नॉर्थ से आ रही हैं, काराकोरम रेंजेस, इसके इस तरफ पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर. तो अब मोटी मोटी बात है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये लेह है, और रिलेटिवली आपको अंदाज़ लग गया कि ये गलवान है. ये गलवान वैली में ये जो अभी स्किर्मिश हुए हैं. एंड सो अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ द गलवान वैली स्किर्मिश. सबसे पहले हमने देखा जो गलवान वैली है, इट इज़ मेड बाय द रिवर गलवान. और ये जो है काराकोरम रेंजेस का ही, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंजेस. एंड थ्रू दिस देर इज़ ए कनेक्टिविटी ऑफ द अक्साई चाइना. और जो अक्साई चाइना है, दिस बिलोंग्स टू जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. तो अक्साई चीन, जिस पर 1962 से चीन का कब्जा है, ये बेसिकली चीन के जिनजियांग प्रांत में पड़ता है. और अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ है, इट इज़ विद द स्टोन्स एंड बैटल्स, नॉट गन्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट since there is a protocol between India and China, so whatever stands off are there, that is only through face to face, through stones and battles. Now what is the next question come in our mind is what is the strategic importance of Galwan river valley. अभी हमने आपसे देखा कि this is the Galwan valley. Obviously this is one of the highest ridge line and it allows Chinese to dominate the area. And through Galwan Valley, this Aksai China is opened. So strategically, it's very important to China. And
जो गलवान वैली जो है, दिस इज ऑल्सो क्लोज टू दौलत बेग ओल्डी, दैट इज डीबीओ। ये भी आप बार बार देख रहे हो कि जो गलवान वैली है ये जो डीबीओ के काफ़ी पास है, ये लगभग यहाँ कहीं गलवान वैली है, ये डीबीओ है, दैट इज दौलता बेग ओल्डी। एंड दौलता बेग ओल्डी हैव इज द इट्स इंडियाज हाईएस्ट एयर बेस एंड इट इज़ नोन टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर बेस। यहाँ पर एक बहुत भारत का और दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है जहाँ फौजी जहाज उतर सकते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जहाज यहाँ पे उतरे हैं। So Galwan River, through Galwan River, China wants to control the area. China wants to have a check and balance at Daulta Beg Oldie. So this is the importance of Galwan River Valley. Now what is Aksai China? That is Aksai चीन। अभी हमने देखा कि चीन ने ये since 1962 China has occupied the part of India, that is Aksai China. So what is Aksai China? So this part, this is in the northern part of India and this is Aksai China. So from Indian angle, Aksai China is a part of Union Territory of Ladakh. भारतीय दृष्टि से देखें तो Aksai China कायदे से जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इसका पार्ट है। बट अगर चाइनीज एंगल से देखें, so what is Aksai China? Aksai China is a part of China since 1962 and it's a part of Xinjiang province of China। तो जो अक्साई चाइना है ये चाइना के जिंगजियांग प्रांत का हिस्सा है एंड फ्रॉम दिस साइड इट्स ए पार्ट ऑफ तिब्बत, दैट इज ज़ीज़ैंग। तो ये दो प्रांतों के इसमें पड़ते हैं। देयर आर टू प्रोविंसेस ऑफ चाइना विच हैज़ अक्साई चाइना। So now next thing, we have already discussed about the Galwan Valley. So how the river Galwan and how the name of the valley is Galwan, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये इलाका तो बेसिकली तिब्बत इलाका है और गलवान जो है एक इस्लामिक नेम है, तो कैसे इस जगह का नाम गलवान रिवर वैली पड़ा? So during British time there was a famous potter, his name was गुलाम रसूल गलवान। ये देखिए फोटो, he is the potter on whose name there is Galwan, which is the site of the current India-China standoff। तो जो गलवान नाम पड़ा ये गुलाम रसूल गलवान एक पॉटर यानी कुली जो हुआ करते थे एंड ही यूज्ड टू हेल्प द ब्रिटिश इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एरिया। सो ही वॉज ए वेरी पॉपुलर पॉटर। बहुत ही वो धीरे अंग्रेज़ों में बहुत ही चर्चित हो गए और काफ़ी लोग उनको, ब्रिटिश लोग उनको जानते थे, यूरोपियंस उनको जानते थे। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मिस्टर गुलाम रसूल गलवान लेटर ऑन ही ऑथर्ड ए बुक सर्वेंट्स ऑफ साहिब। सर्वेंट्स ऑफ साहिब नामक एक पुस्तक भी लिखी और कहा जाता है परहैप्स ही माइट बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस एरिया टू रोट ए बुक इन इंग्लिश। So this is the potter Galwan, whose name the name Galwan Valley is derived. So next question comes in our mind is why tensions are there in this area? What is the reason of the current standoff between India and China at Galwan Valley and along the famous lake? तो क्या रीज़न था कि भारत और चीन के बीच में जो वर्तमान संघर्ष हुआ उसका क्या रीज़न था? So there are multiple reasons which are as follows. Number one, the place where the standoff took place, that place is very close to the Indian DSDBO road. अभी जो गलवान वैली में जो संघर्ष हुआ ये प्लेस एक भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक सड़क है, उसको कहते हैं दरबुक श्योक DBO रोड, दैट इज़ DBO रोड, ये उसके बहुत पास है। Now what is Darbuk Shok DBO road? So DSDBO road
is a subsector North Road which is in the state of Ladakh and it is close to line of actual control. देखने में देखिए इतनी खूबसूरत रोड है DSDBO and this road is beautiful road is made by the Borders Road Organization. तो DSDBO रोड जो है ये राजधानी लेह से चालू होती है और शो और दरबुक और शो से होते हुए ये दौलता बेग ओल्डी तक जाती है. सो टेक्निकली दिस इज द रोड. ये देख रहे हैं लेह से स्टार्ट होकर ये जा रही है दरबुक. सो फ्रॉम दरबुक इट गोज टू श्योक और वहाँ से होते हुए जाती है ये DBO दैट इज दौलता बेग ओल्डी तक. And from Darbuk, this place is Darbuk. So Darbuk से जो दौलताबाद ओल्डी तक it has a length of 255 kilometers. So from Darbuk to Daulta Beg Oldie it has a length of 255 kilometers and from Shyok to Daulta Beg Oldie it has a length of 220 kilometers. तो आप देख रहे हैं कि जो दरबुक से दौलता बेग ओल्डी के बीच में इसकी लंबाई है 255 किलोमीटर और शोक से DBO के बीच इसकी लंबाई है 220 किलोमीटर एंड इट्स ए स्ट्रेटेजिक रोड. काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ऑल वेदर रोड है एंड जिससे जो भारतीय जो सेना है आराम से अपनी रसद को LAC के आसपास वो अब ट्रांसपोर्ट कर सकती है. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस पे एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज था 60 मीटर्स ब्रिज एट द गलवान रिवर, वो भी अब हमने बना लिया है, कवर कर लिया है. सो दिस इज़ ए 60 मीटर ब्रिज विच हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो ये जो अभी स्ट्रगल हुआ उसका पहला रीज़न तो यही था कि चाइना इज़ अनहैप्पी व्हेन इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड DSDBO रोड along the LAC because it has made the position of Indian Army, Indian Air Force much better. And now in a very less time we can transport this necessary material along the LAC even up to the DBO that is Daulta Beg Oldie. ये जो दौलता बेग ओल्डी है ये गोल्डी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. So now what is the importance of DBO? So DBO is the one of the India's highest and one of the world's highest airstrip, that is at DBO, and through it India actually controls the Central Asia. So DBO जो है भारत का सबसे उच्चतम वायुसेना का यहाँ पे अड्डा है. यहाँ पे वायुसेना के बड़े प्लेन उतर सकते हैं और इसके माध्यम से भारत जो है सेंट्रल एशिया पे नज़र रखा हुआ है. दिस इज़ द लवली ब्यूटीफुल DBO एयर स्ट्राइक. और आप देख रहे हैं जो हिंदुस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त भारी भरकम विमान है दैट इज़ C-17 ग्लोड मास्टर. देखिए वो उतर रहा है. सो दिस इज़ द एयर स्ट्राइक ऑफ DBO. तो इंडिया का DBO पर बहुत अच्छा होल्ड है और बहुत भारी वाहन अब हमारे एयरक्राफ्ट DBO पर उतर रहे हैं. और दौलताबाग ओल्डी अगर हमारे कंट्रोल में है तो आप समझ सकते हैं. मैं आपको आई विल शो यू इन ग्राफिक्स. सो दिस इज़ DBO. अगर ये हमारे भी बहुत अच्छे कंट्रोल में है और बहुत अच्छे एयर स्ट्राइक्स हमने बना लिए हैं, सो वी कैन हैव ए कमांड ऑन LAC पे हमारी बहुत अच्छी कमांड है इससे. और एक यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो बॉर्डर है उस पर भी हमारा अच्छा कंट्रोल हो सकता है बिकॉज DBO इज़ इंडिया हैज़ ए स्ट्रेटेजिक कमांड ऑन DBO. अभी हम CPEC पे आने वाले हैं. सो दिस इज़ द लवली पोर्ट ऑफ DBO that is Daulta Beg Oldie. Now I'll show you a video of DBO. So you can see the aircraft hovering at DBO. It's a very huge aircraft of Indian Army. It's about to land. Look at the beauty of the DBO.
Look, it has landed. So now India has a strategic command. So we were discussing about the what is DBO. So we have understand about the importance of DBO, and now it's in our control. And through DBO we can have a better control on the China-Pakistan economic corridor. Now we have a better block to the Karakoram highway between China and Pakistan. तो DBO से क्या फ़ायदा है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो कशगार है, दिस इज़ ए प्लेस कशगार, एंड फ्रॉम हियर देर इज़ ए काराकोरम हाईवे. ये काराकोरम हाईवे जो गिलजित आप देख रहे हैं, गिलजित से होते हुए इस्लामाबाद तक आ रहा है. तो सबसे बड़ी बात है कि थ्रू DBO वी हैव ए ब्यूटिफुल एयरबेस, एंड नाउ वी कैन कंट्रोल द नेक्सस बिटवीन चाइना एंड इस्लामाबाद. और यहाँ से हम जो काराकोरम हाईवे है उस पर बहुत अच्छा हमारा कंट्रोल हो गया, एंड थ्रू इट वी हैव ए बेटर कंट्रोल एट गिलजित पाकिस्तान. और आप ये भी समझ गए कि जो ये गिलजित पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे भी हम एक बेटर कंट्रोल रख सकते हैं. दिस इज़ द गिलजित एरिया. तो सिंस DBO we can have a control on the Karakoram pass, we can have a control at the Gilgit area of the Pakistan. So this thing is in favor of India. And no doubt we have a control at the heights of the Siachen glacier. Siachen glacier की ऊंची जो heights हैं उन पे भी हमारा कंट्रोल है. And DBO now even the Super Hercules transport aircraft can be landed, as I have shown you the video. So just now we have seen, we are discussing the reasons of India-China standoff, जिसमें हमने पहला बड़ा रीज़न देखा कि it was a response from China for the development of Indian infrastructure in Ladakh, particularly the DSDBO road, that is Darbuk Shyok, DBO that is Dolta Beg Oldie road. तो उसमें मैंने आपको ब्यूटीफुल जो DBO रोड है उसके बारे में भी बताया. देन मैंने आपको DBO एयरपोर्ट के बारे में बताया. Now I am showing you the beautiful DSDBO road, that is Darbuk Shyok Dolta Beg Oldie road. So it's an all-weather road built by the Border Road Organization. Now India has a better connectivity along the LAC. देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज इस पे बना हुआ है. So there is all-time connectivity. So another reason of the current standoff is the China is blamed by the world of the COVID-19 pandemic, and even Chinese people are feeling like they are responsible. So the Chinese government, they try to diversify the attention of the Chinese people, and they try to mobilize those negative sentiments into the nationalistic sentiments. तो दूसरा बड़ा कारण ये जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो चीनी लोग थे उनके मन में कुछ नेगेटिव सी एनर्जी थी. तो वहाँ के जो राष्ट्रपति, चीन के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, वो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको राष्ट्रवाद की तरफ कहीं ना कहीं जोड़ना चाह रहे हैं, उनको चैनलाइज करना चाह रहे हैं. अब हम आए रीज़न नंबर 3 कि वहाँ चाइना के जो इसमें राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, he is in the worst position, he is feeling himself weaker. चाइना में कोविड-19 हुआ, the people all over the world are blaming China for COVID-19, and जगह जगह जो चाइना का इस समय पैसा लगा हुआ है,
तो जो जो जिनपिंग है कहीं ना कहीं वो काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, और इस कारण से ही वांटेड टू डाइवर्सिफाई एंड चैनलाइज द अटेंशन ऑफ चाइनीज मैन. So जो Xi Jinping, the Chinese president, he not only is the president but he is also the head of the Central Military Commission. तो 20 से 23 लाख की जो चाइनीज आर्मी है उसके भी वो हेड है. मतलब बात समझिए आप कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो चाइना के भी प्रेसिडेंट है, और वो चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके भी हेड है, एंड ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो इतनी सारी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और he is his name has been and his ideology has been included in the Communist Party Constitution. तो कुछ ही ऐसे चीन के नेता हुए हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी है चीन के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है. उनमें से जो है मेन वहाँ के जो चाइना के जो फाउंडर थे, चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949. सो अंडर माओ द कम्युनिज्म वाज अनफोल्डेड इन चाइना. तो एक तो माओ की आइडियोलॉजी है. देन ड्यूरिंग डेंग ज़िंगपिंग in 1978 onwards the China adopted the market oriented economy. तो एक डेंग ज़ियांगपिंग की है, और थर्ड अब जी हैं जिनकी आइडियोलॉजी चाइना के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो वो अपने आप को महान साबित करने का तो प्रयास कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मौका भी चाह रहे हैं, बिकॉज द US इज़ नाउ टर्न टू बी इनवर्ड. तो कहीं ना कहीं कुछ दूसरे तरीके से वो अटेंशन गेन करना भी चाह रहे हैं. तो ये भी एक रीज़न इस संघर्ष का हो सकता है. देन चौथा और काफ़ी महत्वपूर्ण रीज़न है कि जो वट एवर अलॉन्ग LAC द टेंशंस आर देयर. LAC इज एन एक्चुअली ओरल लाइन, इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन. यानी जो LAC के आसपास जो संघर्ष हो रहा है, तो LAC तो प्रॉपरली डिमार्केटेड है ही नहीं, और इसको परसेप्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ये तो एक ओरल ड्रॉ लाइन है. सो LAC पे अब हम आ जाते हैं कि LAC है, इसका एक वेस्टर्न फ्रंट है जिसको हम लद्दाख कहते हैं, जहाँ अभी संघर्ष की स्थिति देखी. देन इट हैज़ ए मिडिल पार्ट which consists of Himachal, Uttarakhand. So normally there is not much problem in the middle part, and third part इसका है सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश सेक्टर. तो अभी हम तीनों चीज़ों को देखना जा रहे हैं. So again the point is this Indian-Chinese conflict, or say the standoff, is along LAC, and LAC is an oral line. It's drawn by the word of mouth. तो ये शब्दों के उच्चारण से बनी है, कहीं प्लॉट तो है नहीं. तो इसीलिए भी आपस में भ्रम की स्थिति है. अगर हम पांचवा पॉइंट देखें संघर्ष का, तो चाइनीज आइडियोलॉजी इज इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी. चाइना क्लेम्स दैट दिस इज द LAC. पहले हम देखें, दिस इज द LAC, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द LAC, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द LAC, एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द LAC. तो टोटल LAC की जो लंबाई है ये भी बड़ा परसेप्शन बेस्ड है. इट इज़ बिटवीन 3,500 किलोमीटर टू 4,000 किलोमीटर्स. स्थिर मत मानिएगा कि जो LAC है उसकी लंबाई 3,500 किलोमीटर है, ये परसेप्शन पे चेंज होती है. सो दिस इज LOC और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो अभी जो संघर्ष की स्थिति है वो यहाँ पर वो स्थिति है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर LAC. और ये जो मैंने आपको बताया कि ये इंडिया क्लेम करता है कि भाई ये इलाका तो भारत के पक्ष में होना चाहिए, जबकि चाइना ने पूरे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कब्जा किया हुआ है यहाँ पर. एंड चाइना क्लेम दैट द होल अरुणाचल प्रदेश ऑफ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश. तो चाइना ये क्लेम करता है कि जो ईस्टर्न हिमालय का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वो भी उसका है, और सियाचिन के आसपास जो अक्साई चाइना में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में तो चीन ने वैसे ही कब्जा किया हुआ. तो द इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ चाइना इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट सिचुएशन. फिर इसका 6 अगर हम बड़ा रीज़न देखें, सो दैट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बाइफरकेटेड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 पार्ट्स. दैट इज़ इस तरह से देख लीजिए, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, दिस इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, एंड दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख.
तो भारत ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया 2019 में, और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दो पार्ट में स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और कहीं ना कहीं अब अभी हमारे पास ये इलाका तो नहीं है गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन भारत ने जो मैप शो किया उसमें गिलगित बल्तिस्तान इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। एंड चाइना का जो बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट पासिस थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान। सो चाइना हैज़ ए प्रॉब्लम, इफ इंडिया क्लेम्स गिलगित बाल्टिस्तान, सो देयर मे बी ए प्रॉब्लम विद द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये भी संघर्ष का एक कारण हो सकता है। अब चूंकि आया कि चाइना वांट्स टू प्रोटेक्ट सीपीईसी, तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो दिस सीपीईसी इज ए 60 बिलियन USD ambitious project of China. It's a flagship scheme in which a 3,000-kilometer long road will be constructed along the LAC, and that road will reach up to the Gwadar port. तो ये कशगार से ये स्टार्ट होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं। इट हैज़ ए हाईवे सेगमेंट, इट हैज़ ए पाइपलाइन सेगमेंट, इट हैज़ ए रेल सेगमेंट। इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं, लगभग 3,000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये होते हुए, ये बिल्कुल हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए आ रहा है, और करते करते ये इस तरह से चल के ग्वादर तक आ रहा है। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चाइना, इसको हम समझेंगे कि चाइना जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC you have seen. So this is the lovely CPEC, the China Pakistan economic corridor, which is not only strategically but economically very much important for China. Why important for China? Just look, this is the Beijing. Say 70-80% of the Chinese population is towards the eastern side of the China, and this area is very sparsely, and it has a very less density over this area. So now the China wants to have a trade with Africa, with Arabia and Europe. So very long path has to be followed by the China through South China Sea and through Gulf of Malacca and then through Indian Ocean. So there is a very big route. Now with the help of CPC, the China is now easily connected with through the Gwadar port to the Arabian part, to the African, and towards the European part of the world. So this is the importance of CPC for China. So what is CPC? Now you understand, and through our Dolta Beg Goldie, now we can have a better strategic control on CPEC. And this CPEC passes through the area which is actually the Pak occupied Kashmir. So that's why India is concerned, because it passes through Gilgit and Baltistan. Now let us study some places which are associated with the current India-China standoff. So you must be hearing the points like the petrol point 14, or the finger 2, or the finger 4, or the finger 8, or say the Pangong Lake. So now we are going to study some places associated with the India-China standoff. So say the following are the places like the petrol point 14. So in Galwan Valley there are a number of petrol points where the patrolling is done, and the current skirmish is focused here at petrol point 14. This is very close to the Galwan river. This is line of control, LAC, line of control. This is the Galwan flash point, petrol point 14. Now another junction, another place
of the current standoff is Finger 4 area of the Pangong Lake. So this is the lovely Pangong Lake, and you must have heard about the legendary movie The Three Idiots. So the some part of the Three Idiot, which was actually at the end of the movie, that was shooted at the Pangang Lake. So this is basically a 134-kilometer long lake, and it starts from Tibet and it goes towards the Tibet autonomous area. So this is the lovely lake. So along this lovely lake there are some mountain ranges. So these mountain ranges are like the fingers, like this: the finger 4, finger 2, finger 3, finger 4, finger 5, finger 6, finger 7 and finger 8. So up till this point, that is, there is Indo-Tibetan border force point. Say there is a special defense force of India which comes under Ministry of Home to deal with the China, that is known as Indo-Tibetan border police. So till here we have a Indo-Tibetan border police, and on this point there is a Pakistan Liberation, that is the People's Liberation Army. सो ये जो फिंगर 4 है, अभी ये जो हमारे करंट स्किर्मिश हुआ है, ये फिंगर 4 पे भी हुए हैं. सो अब आप समझ गए फिंगर 4 क्या है. दिस इज द एरिया अलोंग द पेंगोंग लेक वेयर चाइनीज PLA, that is People's Liberation of Army, they have come to build structure to stop Indian petroleum. तो ये फिंगर 4 भी अभी चर्चा में रही. और यहाँ पर एक और परसेप्शन की मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि तो चाइनीज जो PLA है, दे से दैट फिंगर 4 टिल फिंगर 4 देयर शुड बी ए चाइनीज टेरिटरी. जो LAC है वो फिंगर 4 तक है, जबकि इंडिया बोलता है कि नहीं, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको आप फिंगर 8 तक मानिए. तो एक तरीके से जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका है, ये समझ लीजिए डिस्प्यूट है. और समझ लीजिए फिंगर 4 के पहले का इलाका इंडियन कंट्रोल में है, एंड फिंगर 8 के बाद का एरिया भी LAC, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के कंट्रोल में है. सो 5 to 8 इज़ ए डिस्प्यूटेड साइट. तो आप समझ ही गए अभी किस फिंगर के आसपास आप समझ गए कि संघर्ष हुआ है. फिंगर 4. तो पेट्रोल पॉइंट पूछे तो PP 14, और अगर फिंगर की बात करें तो फिंगर 4. और नाउ इट्स वेरी क्लियर दैट टिल बिफोर फिंगर 4 देयर इज ए इंडियन कंट्रोल, आफ्टर फिंगर 8 देयर इज ए चाइनीज कंट्रोल, एंड द ग्रे एरिया इज बिटवीन 4 to 8. और इसमें चूँकि पैंगोंग लेक फिंगर्स जो हैं दे आर बिलोंग टू द पैंगोंग लेक. सो पैंगोंग बात करें तो इट्स ए लॉन्ग 134 किलोमीटर लॉन्ग एंडोरिक लेक, दैट इज ए लैंडलॉक्ड लेक which starts from Indian side, and it goes towards the China, toward the autonomous area. This is a brackish water lake, and it totally freezes in the winter, so that it becomes ideal for skating and for polo and for military exercises. और जो लद्दाखी भाषा में जो पेंगोंग है उसका मतलब होता है कॉन्केविटी, यानी डिप्रेशन. तो जो पेंगोंग का मतलब है डिप्रेशन, कॉन्केविटी. तो इट्स नोन एज पेंगोंग सॉ मतलब लेक. And what is the significance of this lake? So strategically this is very important, because along its northern and southern side, its 2/3 part is controlled by China, and the 1/3 part of the eastern side is controlled by India. तो करीब 134 किलोमीटर लंबी जो ये लेक है, जिसका जो पश्चिम का हिस्सा है और इसके पूर्व के हिस्से की बात करें, so its 1/3 part is controlled by India, and the eastern 2/3 part is controlled by China, and it is of great significance because the patrolling is done on its north side and on the south side.
In 19th century, Dogra general Zorawar Singh, he crossed this Pangong Lake before invading the Tibet. So we have seen that the Pangong Lake has a great strategic importance for India as well as China. Now, in 2017, there was a standoff between India and China. Let us discuss that. The 2017 India-China border standoff. So this is India, this is the Indian state of Sikkim, this is Bhutan. So there is a place Dokla Law. So this is a Dokla place, and China was constructing some infrastructure, and Bhutan is under the protection of India. So the Indian forces opposed the Chinese movement, and because of the aura of the Indian army and the diplomacy, the Chinese troops retreated back. So आप देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में सन 2017 में डोकला विवाद हुआ था। ये जो डोकला भारत में नहीं है, ये बेसिकली भूटान की टेरिटरी है, और भूटान के संरक्षण का कार्य चूँकि भारत करता है, और चीन यहाँ पर गलत तरीके से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा था, जिस पे भारत की सेनाओं ने अपोज किया, और चीनी जो भारतीय सेनाओं की बहादुरी, टाइमली एक्शन और जो इंडियन डिप्लोमेसी काम आई, और चीन की फौजें पीछे हुई थी। And in the current standoff between India and China, there are different opinions. Say, if you talk about the superpower of the world, so the White House says that they are quite aware and they are monitoring the situation, and they have forwarded the deepest condolences to the Indian soldiers. And Mr. Trump personally said that if needed, he is ready to mediate between the two. तो अगर हम विश्व की वैश्विक ताकतों की अगर प्रतिक्रिया देखें, तो अमेरिका ने इस बात को मॉनिटरिंग कर रहा है बारीकी से, और जो सैनिक हताहत हुए हैं उनको अमेरिका ने कंडोलेंसेस किए हैं। एंड मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ मध्यस्थता करने के लिए, लेकिन इंडिया हैज़ क्लियरली सेड दैट नो थैंक यू वेरी मच, वी कैन सॉल्व आवर मैटर आवरसेल्फ। अगर हम बात करें रशिया की, so Russia has also said that Russia hopes that the situation will be de-escalated, and the existence of RIC, that is Russia, India, China, is necessary on the world map. तो रूस ने भी कहा है कि वो होप करता है कि जो बहुत जल्दी तनाव कम होगा, और रशिया चाहता है कि रशिया, इंडिया, जो चाइना है, उनमें आपस में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन बना रहे। So now the major question to us is, what are the options with India? अब भारत के पास क्या तरीके हो सकते हैं चीन को काउंटर करने के लिए? So number one option is the trade barrier. So India can impose higher trade barriers. India can go for the sanitary measure, the phytosanitary measures. यानी भारत चीन से आने वाले सामान के खिलाफ कुछ रुकावटें कर सकता है। उन रुकावटों के तहत भारत जो है आयात शुल्क बढ़ा सकता है, या सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी का मतलब है कि उनमें बिना शुल्क बढ़ाए बाकी दिक्कतें पैदा कर सकता है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी यानी उनकी साफ सफाई को लेके, और उनसे उस आयात से होने वाले प्लांट की हेल्थ को नुकसान को लेके भारत कुछ बैरियर्स लगा सकता है। सो इफ़ इंडिया हाइक्स द duties, they are the normal trade barrier, and sanitary and phytosanitary measure means other than the increasing the import duty, other than that which is related with the sanitation and which is related with the plant health. तो भारत ऐसे कुछ कार्रवाई उन पे कर सकता है। जो करंट जो इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 88 to 90 बिलियन USD का है, and this trade is
दिस ट्रेड डेफिसिट इज इन फेवर ऑफ चाइना। यानी भारत उतना ज़्यादा निर्यात नहीं करता चीन को जितना कि भारत चीन से आयात करता है। तो हमारे जो ट्रेड इम्बैलेंस है 53, 54, 55 बिलियन यूएसडी का है। यानी भारत नुकसान में ही है उनसे चीन से ट्रेड करके। बट हम एक चीज़ और देखें कि द टोटल चाइनीज ट्रेड फॉर इंडिया स्टैंड्स फॉर 11 to 13%। यानी भारत के कुल आयात निर्यात में चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है 12-13% का। बट इफ वी टॉक अबाउट चाइना, इन चाइनीज टोटल ट्रेड द इंडियन वॉल्यूम इज जस्ट 3%। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे व्यापार के हिसाब से वो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, लेकिन उनके ट्रेड के हिसाब से देखें तो हमारा स्थान काफ़ी आगे नहीं है। और फिर दूसरी बात भी करें कि वट एवर एक्सपोर्ट वी डू टू चाइना दे बिलोंग टू प्राइमरी गुड्स लाइक कॉटन, यार्न, ऑर्गेनिक केमिकल्स। बट वट एवर इम्पोर्ट वी डू फ्रॉम China that belongs to electric machinery, technology and API, that is active pharmaceutical ingredients. Active pharmaceutical ingredients are important for the pharma industry. तो हम जो चीन को निर्यात कर रहे हैं वो प्राइमरी गुड्स है, वो चीन कहीं और से भी ले सकता है, कॉटन, यार्न, ऑर्गेनिक। लेकिन जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो या तो टेक्नोलॉजी है, या इलेक्ट्रॉनिक सस्ता गुड है, या API है। तो जो बात हो रही है कि हम उनके खिलाफ आसानी से प्रतिबंध लगा सकते हैं, सो थिंग्स आर नॉट सो इजी। इफ़ वी इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना वी विल बी ऑल्सो इन ट्रबल। इन चीज़ को याद रखना चाहिए। एंड इफ़ वी कंपेयर द इंडियन इकोनॉमी वर्सेस द चाइनीज इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी इज वर्थ ऑफ 3 trillion USD, whereas the Chinese economy is in the tune of 14 to 15 trillion USD। यानी हमारी अर्थव्यवस्था से 4 से 5 गुना बड़ी है चीनी अर्थव्यवस्था। तो हमने देखा कि जो चीनी दैत्य है, चीनी ड्रैगन है, उसकी अर्थव्यवस्था भी भारतीय अर्थव्यवस्था से लगभग 5 गुना है। तो जहाँ तक हम बात करें कि there is an option of trade barrier, so yes, we can impose trade barrier against China, but if we apply we will be also in trouble। और दूसरी अगर बात करें मिलिट्री ऑप्शन की, so for a military option we should understand India versus China। So there is an agency known as SIRPI, SIRPI, which assess the conditions, the situation of the two countries। तो अगर हम इंडिया और चाइना को डिफेंस को कंपेयर करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर वॉर हेड्स, सो चाइना इज हैविंग 320 न्यूक्लियर वॉर हेड्स एंड इंडियन वॉर हेड्स आर हाफ और लेस देन हाफ ऑफ चाइना। हालांकि न्यूक्लियर वॉर ऐसा होता नहीं है वर्ल्ड में, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि चीन के पास, अगर भारत के पास 150 न्यूक्लियर हथियार हैं तो चीन के पास भारत से दुगने से भी ज़्यादा हथियार हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इंडियन सोल्जर्स आर फार मोर एक्सपीरियंस, Indian soldiers are far more battle hardened side, because for a long time Indian soldiers are fighting a low intensity conflict। तो न्यूक्लियर वॉर हेड में तो चीन आगे है, लेकिन जहाँ तक सैनिकों का प्रशिक्षण है वो भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण सर्टेनली बेहतर है। और जबकि जो चीन की PLA है उसने 1979 के बाद तो कोई बैटल लड़ा ही नहीं है। एंड द PLA इज़ नॉट सो ट्रेन बिकॉज आफ्टर द चाइना वियतनाम वॉर आफ्टर 1979 दे हैव नॉट लेड टू एनी वॉर। इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, तो आप देख रहे हैं इंडिया इज़ हैविंग F13 lakh एक्टिव पर्सनल, सो चाइना इज़ हैविंग ऑलमोस्ट डबल, दैट इज़ 23 lakhs। इफ़ यू टॉक अबाउट the total aircraft, if India is having 2100, so the China is having almost 3000, 2955, almost 3000।
So if we talk about the tank strength, if India is having 4,400 tanks, so China is having 6,400 tanks. So similarly, if India is having the 300 rockets, the China is having 1,700 rockets. So aircraft carrier, India is having 3 and the China is having 1 aircraft carrier. So this is the comparison of the military power of the both countries. But another thing is important, and that is the presence of the military. Okay, the Chinese army on paper appears to be stronger. दिखने में तो कागज पे जो चीन की सेना है आप देख रहे हैं भारत से ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन अगर हम LAC की बात करें, if we talk about the LAC, then situation may be different. तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि LAC की अगर बात करें तो कौन सी सेना किस स्थिति में है. अब उस पर आ जाते हैं. जो बेसिकली जो चीन की सेना है जो कि LAC पे लगी हुई है वो काफ़ी बिखरी हुई है. There are 2.05 to 2.3 lakh Chinese soldiers which are distributed among these areas like Xinjiang and the Tibet autonomous area. तो चीन के पास चीन के पश्चिमी हिस्से में 2.05 से लेकर 2.35 लाख सोल्जर्स हैं. यानी ये जो मान के चल रहे हैं हम 2 से लेके 2.35 लाख सैनिक हैं वो पूरे LAC पे नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. और चाइना का जो वेस्टर्न एरिया है दैट इज कमांडेड बाय द वेस्टर्न थिएटर कमांड. सो वेस्टर्न थिएटर कमांड हैज़ एन आर्मी ऑफ 2.05 to 2.35 lakhs, बट इट इज़ ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड. आप देख रहे हैं जो रशिया है, रशिया में जो जिंगजैंग प्रांग लगा हुआ है तो देयर आर सम आर्मी ओवर देयर. तो जिंगजैंग में भी देयर इज़ एन इंसर्जेंसी, उसको भी दबाने में लगी हुई है. सम आर्मी इज़ देयर टू लुक एट द तिब्बत ऑटोनोमस एरिया. तो the Chinese army is actually diffused at different places. But if we talk about Indian, so there are around 15 to 20,000 soldiers present at the western. There are certain soldiers, 35,000 soldiers, they may be present on the central, and around 1.75 lakh soldiers they are present in the eastern side. So this is how, if we total the Indian soldiers around LAC, so there are 2.25 lakh soldiers which are present at LAC. इसी बात को एक लाइन में संक्षेप में कर लें कि भारत में डेडिकेटेड 2.25 लाख सोल्जर्स हैं जो LAC के आसपास है, जबकि चीन में के पास जो इस समय वेस्टर्न थिएटर कमांड में जो 2.05 से 2.35 लाख के बीच सोल्जर है वो उसके डिफरेंट एरिया में फैले हुए हैं. सो दिस इज हाउ इंडियन आर्मी इज इन ए बेटर पोजिशन. देन इंडियन आर्मी के जो यहाँ पर स्टेशंस हैं दे आर ऑल फॉरवर्ड स्टेशंस, जबकि चाइनीज स्टेशन जो है फॉरवर्ड स्टेशन नहीं है. चाइना को रसद मिलने में भी प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज द वेस्टर्न एरिया ऑफ द चाइना इज़ ऑल वेरी स्केयर्ड पॉपुलेटेड. तो चीन का जो पश्चिमी हिस्सा है बहुत ही स्केयर पॉपुलेशन है, आबादी बहुत कम है, सप्लाईज में उसको बहुत दिक्कत जाने वाली है. So does India has an advantage of geography? Yes, India has a geographical importance. और जैसा हमने बताया कि जो जोग्राफिकली जो इंडिया की जो कमांड्स हैं, फॉरवर्ड कमांड्स हैं, इंडिया की बेटर पोजीशन है, तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना अपने आप को काफ़ी इजी जाने वाला है इफ़ देयर इज़ ए वॉर. मैं उसको और इस तरह से संक्षेप कर लूँ कि इफ़ देयर इज़ ए वॉर, पहली बात तो वॉर अभी सिचुएशन है नहीं, बट इफ़ देयर इज़ ए वॉर अराउंड LAC, द इंडियन सोल्जर आर हैविंग इन ए मच कमांडिंग सिचुएशन. बट इफ़ देयर इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग वॉर देन चाइना हैज़ एन अपर एज. तो अगर कुछ समय के लिए युद्ध होता है, LAC के आसपास होता है, तो भारत की ज़्यादा अच्छी संभावना है. अगर ये युद्ध लंबे समय चलता है तो चीन की ज़्यादा अधिक संभावना है. एंड द थर्ड फ्रंट इज़ द डिप्लोमेटिक ऑप्शन. सो
इंडिया हैज़ से 3 ऑप्शंस अभी हमने देखा. फर्स्ट इज द ट्रेड ऑप्शन, नंबर 2 इज द मिलिट्री ऑप्शन एंड नंबर 3 द डिप्लोमेटिक ऑप्शंस. सो आपको पता ही है कि इस समय जो यूएसए है, यूएसए इज टू मच अगेंस्ट चाइना अंडर मिस्टर ट्रम्प. मतलब अमेरिका में इस समय आप समझ लीजिए कि 1 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं. तो अमेरिका इस समय काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में है. So US think that China is responsible for spreading the COVID-19. So we can take advantage of this situation and we can use the power of US against China. तो इस समय मिस्टर ट्रम्प और अमेरिका में जो सेंटिमेंट है वो चीन के खिलाफ है और भारत इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है. तो एक तो इस तरह से हम अमेरिका को डिप्लोमेटिकली उससे टाई अप करके चीन के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. Another option is using the Quad grouping. So Quad is a group of 4 nations like India, Australia, the US and the Japan. तो Quad एक ग्रुप है जो कि आप देख रहे हैं, जो कि इंडियन ओशन में शांति चाहता है, पैसिफिक ओशन में शांति चाहता है और कहीं ना कहीं जो क्वाड है ये चीन की साम्राज्यवादी नीति के भी खिलाफ है. तो हम क्वाड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रिपीट, जो क्वाड ग्रुप है इट्स ए ग्रुप ऑफ अमंग 4 नेशंस लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, एंड वी कैन मोबिलाइज दिस क्वाड अगेंस्ट चाइना. बिकॉज फ्रॉम चाइना everyone is worried, even that Japan is worried, Australia is worried, because आपको पता ही होगा that China is following the string of pearls policy, and under string of pearls policy China has occupied the areas in the southern China Sea. China is occupying number of islands in the Indian Ocean and China is moving towards Australia. So this is the South China Sea, and in South China Sea, the China has completely taken control over the South China Sea without respecting the exclusive economic zone of the neighboring countries like the Philippines, like Brunei, like Malaysia. तो चीन ने दक्षिणी जो चीन सागर है उसमें पूरा कब्जा कर लिया और जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको 320 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो मिलना चाहिए उसको भी चीन नहीं मानता. चीन ने अपनी एक 9 डैश लाइन खींच ली है और चीन का मानना है कि देयर इज ए चाइनीज कंट्रोल टिल दी 9 डैश लाइन. और चाइना ने यहाँ पे कुछ आइलैंड्स पे भी जबरन कब्जा किया हुआ है, लाइक द स्पार्टले आइलैंड, लाइक द पार्सल्स आइलैंड. सो चीन से सारे पड़ोसी परेशान हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे मलेशिया हो या ब्रुनई हो. सो अलॉन्ग विद द क्वाड द इंडिया कैन ऑल्सो एक्टिवेट द कंट्रीज विच आर ए विक्टिम ऑफ द चाइनीज एग्रेशन. एंड सेकेंडली, चाइना इज इंक्रीजिंग द स्ट्रिंग ऑफ पुल्स. दिस कंट्रोल ऑफ चाइना on South China Sea was the beginning of this string of pulls, but now we are getting a even better version of string of pulls. तो दक्षिणी चीन सागर से चीन ने जो नियंत्रण करना स्टार्ट किया, अब वो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और जगह जगह वो कब्जा कर रहा है. इसी चीन के अजगरनुमा अटेम्प्ट को, जो कि समुद्र में कब्जा कर रहे हैं, द्वीपों पे कब्जा कर रहे हैं, इसी को कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पल्स. और तो इससे जो क्वाड जो ग्रुप है वो वरीड है, सारा दुनिया वरीड है. आप देख रहे हैं कि चाइना इज़ हैविंग देयर बेसिस, नेवल बेसिस और ट्रेड फैसिलिटीज़ और इवन द सर्विलेंस फैसिलिटीज़ एट म्यांमार, एट चटगांव पोर्ट, बांग्लादेश, एट हम्बनतोटा. आई हैव पर्सनली gone few kilometers away to Hambantota. So this in Hambantota island was developed by China in Sri Lanka, and when Sri Lanka could not pay back, the part of the Hambantota container port is occupied by China, and there is a suspicion among Sri Lankan people that after few decades there will be no Sri Lanka, there will be China Sri Lanka.
तो मैं हम्मन तोता के कुछ पास तक गया हूँ, बेन तोता तक गया हुआ हूँ, और नॉर्मल जो 30 साल की लीज पे लगभग था ये, और यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया, और जब श्रीलंकन उसको पैसे को रिटर्न नहीं कर पाए तो हम्मन तोता पे चीन ने कब्जा कर लिया। और श्रीलंका में जनरल ये परसेप्शन है कि आज का श्रीलंका कुछ दशक बाद चीनी श्रीलंका होगा। Similarly, China has taken control over the Gwadar. China is developing the Gwadar port through, and this Gwadar port is connected through CPEC, that is China-Pakistan Economic Corridor, and it's a ambitious 62 billion USD project. Same thing could repeat here if Pakistan does not return the debt of China. China can control at the Gwadar port. तो इस string of pearls से the Chinese imperialism, the countries are worried, and India can diplomatically take the advantages of these situations. India can also use the BRICS to counter China. BRICS is an organization of the countries like Brazil, Russia, India and China. So the recent 12th summit of BRICS is proposed to be held at St. Petersburg, July 2020. So India can raise the voice in BRICS against China. So these are the options available to India, like the financial, the economic options, number 2 the military options, and number 3 the diplomatic options. And the current Indian government is working on it, and I hope that timely there will be resolve between India and China. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.